In a major breakthrough, police in Shravasti district have uncovered a fake currency racket operating out of a madrasa in Gangapur village, Malhipur. Acting on a tip-off, the police conducted a raid and apprehended 5 individuals involved in the operation. During the raid, authorities seized counterfeit notes worth 35,400 rupees and genuine currency totaling 15,000 rupees. The recovered items include a printer, a laptop, 4 bottles of ink, a motorcycle, 5 mobile phones and illegal firearms and a live cartridge. According to officials, the suspects would mix counterfeit notes with genuine currency and distribute them to less educated individuals to avoid detection. During interrogation, the accused revealed that they learned the technique of printing counterfeit notes years ago by watching YouTube tutorials. They purchased the necessary equipment and began circulating fake currency in rural areas where the distinction between real and fake notes often goes unnoticed. ये थाना हरदत्त नगर गिरंट के एसओ को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ लोग नकली नोटों का धंधा कर रहे हैं। इस सूचना पर सर्विलांस टीम और एसओ गिरंट और सीओ सिटी भिनगा एडिशनल एसपी के पर्यवेक्षण में ये टीम काम कर रही थी। इस बीच एक व्यक्ति जो नानपारा बहराइच से का रहने वाला है, उसको उठाया गया तो उसके पास से कुछ नकली नोट और असली नोट बरामद हुए। उसकी निशानदेही पे 4 अन्य अभियुक्त पकड़े गए, कुल मिला के 5 अभियुक्तों से, और सभी के पास से कुछ असली और नकली नोट बरामद हुए, जो कुल संख्या में लगभग 35,400 नकली नोट और 15,000 रुपये असली नोट बरामद हुए हैं। इसके साथ ही इनकी निशानदेही पे मल्लीपुर की मस्जिद में, जिसका नाम मदरसा फजर नबी है, उस मस्जिद के मैनेजर को पकड़ा गया और उनके पास से एक कलरफुल प्रिंटिंग मशीन और मोबाइल आदि बरामद हुए हैं, जिसमें से वो नकली नोट असली नोट से छाप करके और उसको मार्केट में चला देता था। इस संबंध में ये भी जानकारी हुई है कि ये रात को गुटखा, सब्जी और जनरल स्टोर की दुकानों पे कुछ छोटे मोटे नोट जो है, जो इनकी इसमें 200 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये के नोट हैं, ये बरामद हुए। इसको जो है अंधेरे में और कम पढ़े लिखे और नासमझ और कम समझदार औरतों को, बच्चों को से चलाते थे बदली करके, और इस तरह ये इस नक्सस का खुलासा हुआ है। हमारे सर्विलांस टीम जिसने ये काम किया है, पूरी टीम को 25,000 रुपये इनाम की घोषणा की जाती है। सर, ये जो नकली नोट जो बनाने वाला गिरोह है, ये कब से ये नकली नोट छाप रहा था जिले में? ये इसने अपने पूछताछ में बताया है कि लगभग 1 साल से इस काम को कर रहे हैं और 1 साल से इस तरह से नकली नोटों को असली मार्केट में उतार करके आर्थिक लाभ लिया करते हैं। लगभग कितनी नोटें इन्होंने मार्केट में सर्कुलेट की होंगी? तो ये ऐसा एट ए टाइम इसके पास 35,400 नोट बरामद हुए हैं। इससे उम्मीद की जाती है कि ये लाखों रुपए पहले चला चुके हैं। इस संबंध में और भी गहराई से पूछताछ होगी। विवेचना के दौरान उन तथ्यों को प्रकाश। कहाँ से सर ये गुडोर हुआ सर, किस जगह से? ये जो मशीन बरामद हुई है, प्रिंटिंग मशीन, वो तो मदरसे से बरामद हुई है, लेकिन मैक्सिमम अभियुक्त थाना गिरंट क्षेत्र के में इनको अरेस्ट किया गया है। सर, मदरसा किस जगह पे पड़ता है? मदरसा मल्लीपुर के एक गांव में है, गंगापुर गांव में मदरसा है, लक्ष्मणपुर के पास, वहां से इनको अरेस्ट किया गया। A vehicle from the convoy of Dr. Sanjay Nishad, a cabinet minister in the Uttar Pradesh government, was involved in a road accident late Tuesday night near Januan village in the Khejuri police station area of Balia district. The vehicle lost control while attempting to avoid an animal, collided with an electric pole and overturned in a roadside pit. The incident left 6 individuals injured, including 5 women and the driver. Police quickly arrived at the scene and transported the injured to the district hospital for treatment. Cabinet Minister Sanjay Nishad, who was travelling from Deoria to Balia for the party's constitutional rights yatra, personally visited the community health centre in Sikandarpur following the accident. Speaking to the media, he confirmed that after initial treatment at Sikandarpur, the injured were referred to the district hospital for further medical attention. Balia District Magistrate Praveen Kumar Lakshar reported that all 6 injured individuals were examined and treated. 3 women were discharged after receiving medical care, while the remaining 3 continued to recover at the district hospital. The condition of all the injured is stable and no serious injuries have yet been reported. Authorities are investigating the circumstances of the accident, emphasizing the importance of road safety during high-profile convoys.
पीछे गाड़ी थी, जानवर से आने की वजह से पब्लिक को मोड़ भी था, जानवर के बचाने में गाड़ी नीचे चली गई, लेकिन बिल्कुल की चोटें आई हैं और मैं डॉक्टर को धन्यवाद दूंगा कि तत्काल आने के बाद उन्होंने सेवा सभी लोग सब ठीक है। एक तो अभी मतलब एक तरीके से एहतियातन एक्सरे वगैरह कराना है तो उसके लिए हमको आज बाकी ठीक है। मोड़ था जानवर आने जैसा पता चला, जानवर आने की वजह से बचाने गाड़ी ठीक है। सर कहाँ से आ रहे थे आप? हम लोग अभी तो कार्यक्रम था हम लोग का इंडिया में सलेमपुर से चल गए, हम लोग बलिया जा रहे थे। बलिया एक संवैधानिक यात्रा है, उसमें गाड़ियाँ हैं। अब तक तो सब ठीक ठाक है, ये भी ठीक रहेगा, लेकिन मान था कि आज उस मोड़ पर गाड़ी पीछे चली गई, इसकी वजह से कितने लोग घायल हैं सर? लगता है कि उसमें महिलाएँ थी और चला रहा था, बाकी सब ठीक है। देखिए कल रात को लगभग 10 बजे के आसपास या 10:15 के बीच में, 10 से 10:15 के बीच में मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली जो माननीय मंत्री जी के पीआरओ ने दी थी, और उन्होंने बताया कि काफिले के गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। तो तत्काल से हमने वहाँ नज़दीकी जो अस्पताल हमारा सिकंदरपुर, वहाँ पे हमने MOIC को भेजा, हमारे SDM पहुँचे और पुलिस से भी वहाँ पे CO और एडिशनल SP तुरंत से पहुँचे और 6 लोग घायल थे। सभी की जांच वगैरह कराई गई और जो इलाज दिया गया और सभी की हालत जो है नॉर्मल है, किसी प्रकार की खतरे की कोई बात नहीं। माननीय मंत्री जी संजय निषाद जी थे और उनका काफिला जो है देवरिया से यहाँ बलिया की तरफ आ रहा था। सभी की हालत जो है ठीक है, किसी की घबराने की जैसी स्थिति नहीं है। 3 तो बिल्कुल ठीक थे, ऐसा कोई नहीं था, 3 के थोड़ी